conducted major archaeological excavations, authored books and research papers, and has been widely recognized for his outstanding contribution to heritage documentation, including the remarkable documentation of more than 2,000 heritage villages of Bihar. His work reflects a deep commitment to public archaeology, cultural awareness, and heritage conservation. Now I respectfully request Dr. Vinod Kumar Rai, co-chair of MIS SSC 2026, to kindly come to the dais and read out the citation in honor of Dr. Anant Ashutosh Dwivedi sir. Sir, please. थैंक यू मैडम। जैसा कि अभी थोड़ा हम लोग डिले चल रहे हैं, 2025 का जो डॉक्टर रघुवंश सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो हमने दिया डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सर को, और ये 2026 का डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है जो कि हम डॉक्टर अनंता आशुतोष द्विवेदी सर को दे रहे हैं। और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। डॉक्टर रघुवंश सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 conferred upon Dr. Ananta Ashutosh Dwivedi, Director General, Heritage Society, Patna. SS College, Jahanabad, a constituent unit of Magadh University, takes immense pride in conferring the Dr. Raghuvansh Singh Lifetime Achievement Award 2026 upon Dr. Ananta Ashutosh Dwivedi, an eminent archaeologist, heritage scholar, and visionary academic leader, in recognition of his distinguished contributions to archaeology, heritage, conservation, and cultural scholarship. With over 2 decades of dedicated service in art, archaeology, and history, Dr. Dwivedi has held significant positions with the Archaeological Survey of India and the Government of Bihar as Director of the Lari Archaeological Excavation, Arwal. He led important field investigations and substantially enriched the archaeological understanding of the Magadh region. His participation in major excavations at Kutumba, Chausa, Ghora, Katora, and Jufardi, along with extensive explorations and conservation initiatives, reflects his commitment to rigorous research and heritage preservation. A PhD from Patna University and professionally trained at Institute of Archaeology, Dr. Dwivedi has authored and edited scholarly works and published research papers on Indian iconography, temple architecture, numismatics, and cultural traditions of Magadh. As founder of Director General of the Heritage Society and as President of the World Heritage Olympiad, he has created significant platforms for public archaeology and heritage awareness. His meticulous documentation of more than 2,000 heritage villages across Bihar stands as a monumental contribution to cultural mapping, community-centered preservation, and safeguarding of the region's civilizational legacy. In recognition of his outstanding archaeological achievements, he was honored with the Times Man of the Year 2019 award by the Times Group. His academic engagement as visiting faculty at the National Institute of Fashion Technology further reflects his interdisciplinary scholarship and public intellectual engagement. This award commemorates the enduring legacy of Dr. Raghuvansh Singh, the visionary former principal of SS College, Jahanabad. In honoring Dr. Dwivedi, the college pays tribute to a scholar whose lifetime dedication to archaeological research, heritage advocacy, and academic leadership has significantly enriched India's cultural consciousness. Presented with on this 21st day of February 2026 with profound respect and admiration. Thank you.
Now I kindly request Principal Sir to please give Dr. Raghuvan Singh Lifetime Achievement Award 2026 to Dr. Anant Asutosh Dwivedi Sir. Audience, please give a great round of applause for the award. सर थोड़ा वर्टिकल कर दीजिए। Now I request Dr. Anant Asutosh Dwivedi Sir to kindly enlighten us from his few words. एहि सुर सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपे माम भक्त गृहानार्घम दिवाकर। सम्मानित मंच एवं उपस्थित विद्वत सभासद, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जो ज़मीन के नीचे का कार्य करता है और वर्तमान युग जो एआई युग है, पूरी आधुनिक युग है, उस युग में इस विषय की महत्ता को बरकरार रखते हुए आपने जो मुझे सम्मानित किया है, आपने जो मुझे अवार्ड दिया है, आज के लिए अपने तमाम हेरिटेज परिवार की तरफ से, अपने तमाम हेरिटेज सोसाइटी एंड वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड के जितने भी हमारे हेरिटेज कस्टोडियंस हैं, उन तमाम परिवार की तरफ से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवार्ड हमारे लाखों धरोहर प्रेमियों जो अपने गाँव में, अपने शहरों में और अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हेरिटेज के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, आइदर रिसर्च के हेरिटेज रिसर्च की ओर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर, या हेरिटेज के एकेडमिशियंस के तौर पर जो काम कर रहे हैं, उन तमाम परिवारों को आज का यह सम्मान मैं सादर समर्पित करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, प्रिंसिपल साहब ने इच्छा व्यक्त की है कि कुछ जहानाबाद के बारे में भी दो शब्द कह दिया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहानाबाद वह जगह है जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करने का काम किया है इस मामले में, क्योंकि जहानाबाद हेरिटेज के मामले में बहुत ही यूनिक है। इसका मुख्य कारण यह है, हम सभी जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट मैन मेड केव जो है, जो बराबर नागार्जुनी की गुफा है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा है। यह कितना बड़ा गौरव की बात है हम तमाम जहानाबाद वासियों के लिए, मगध वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए, क्योंकि आज से लगभग 2300 साल पहले इस मगध ने, इस वर्तमान बिहार ने पूरे भारत को अपना एक आइडियल बनाते हुए अपने आप को और सबको मार्गदर्शित करने का काम किया था, और उसी से इंस्पायर होकर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जैसी तमाम गुफाएं जो हमारी किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसका निर्माण करवाने का कार्य किया था। इसका मतलब है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का अगर कहा जाए कि गुफाओं का जनक है तो हमारा बराबर नागार्जुनी की पहाड़ी में स्थित तमाम गुफाएं हैं। यह सभी के लिए गौरव की बात है। एक दूसरी बात मैं और साझा करना चाहता हूँ। आजकल बहुत नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि उस आजकल के समय में विश्वविद्यालय जो है, कॉलेज जो है, गाँव को गोद लेता है। अलग अलग जगहों से यह आदेश जारी होता है कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि अपने आसपास के गाँव को गोद ले, कि ताकि वहाँ एकेडमिक माहौल बनने का कार्य करे, हम सभी बनाने का कार्य करें। लेकिन उस जमाने में जब नालंदा महाविहार डेवलप हो रहा था, एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप हो रहा था, तो उस समय के कॉपर प्लेट्स का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग 200 गांव मिलके जो अपना डोनेशन नालंदा विश्वविद्यालय को देते थे, और नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त उस जमाने में किया था। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और जो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था आजकल जो भारत इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत उसी चीज़ों को, उसी ग्लोरी को रिवाइव करने का कार्य कर रही है कि हम
कैसे बदल गए हैं। पहले हमारा गांव जो है उन विश्वविद्यालय को गोद लेता था और अपनी आय, गांव का आय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय रन करता था, और आज हमारा गांव आर्थिक दृष्टिकोण से उतना कमजोर कैसे हो गया। यह बहुत सोचने की बात है और यह मतलब हम सभी को फोकस करने की जरूरत है। वैसे जहानाबाद में देखा जाए तो लगभग 100 से ज्यादा हमारा आर्कियोलॉजिकल विलेजेस है। मैं जब वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड कराता हूं बच्चों के बीच में कि ताकि वे अपने जिले की धरोहर को अच्छे से जान सके, कई सारे वैसे गांव हैं। उसी गांव में, उस गांव में जो नालंदा विश्वविद्यालय को, एक गांव जो यहाँ उनको गोद लिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को अपना डोनेशन देता था, उसमें क्योंकि नालंदा की खुदाई से एक मुहर निकला है एंशिएंट टाइम का, जो संस्कृत लैंग्वेज में है और उस समय की अर्ली मिडाइवल पीरियड की ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, जिसमें लिखा हुआ है घृतांजना ग्राम जनपदस्य। तो एक शब्द बड़ा, यह जो मंत्र है, यह जो उस समय का अभिलेख लिखा हुआ है घृतांजना ग्राम जनपदस्य, मतलब यह आसपास की धरोहर का, इसका मतलब घृतांजना वर्तमान समय का घेजन है। घेजन ही वह गांव है जो नालंदा विश्वविद्यालय को गोद लिया था। तो मैं बहुत कम समय के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और आप सभी के प्रति आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय धरोहर। सादर प्रणाम। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक है। हमारे टुकन के जो डायरेक्टर हैं के मिश्रा सर, उनकी एक इच्छा है कि वे अपनी तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार प्रोफेसर बीके मंगलम सर को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आएं और सर को कृपया सम्मानित करें। के मिश्रा सर। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर स्मृति रेखा मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे संचालित करें। थैंक यू सर। अभी मैं सर, प्रिंसिपल सर और रजिस्ट्रार सर से निवेदन करूंगी कि सर हमारे आज के की नोट स्पीकर्स को सम्मानित करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर कुमारी निमिषा, ऑनरेबल गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज पटना के प्रोफेसर को। मैम प्लीज़ मंच पर आइए। सर प्लीज। डॉक्टर नेहा सिंह मैम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एएन कॉलेज पटना। डॉक्टर कंचन कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एएन कॉलेज पटना। And finally, you can't express your pleasure in words when you invite your own mentor on the stage, Ma'am Bhavna Nigam, Ma'am Dr. Bhavna Nigam, Department of Geography, Head Department of Geography, AN College, Patna. Please give a big round of applause.
ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं और डॉक्टर स्नेहा मैम दोनों ही भावना मैम के स्टूडेंट रह चुके हैं, और ये बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है जब आप अपने मेंटर को अपने कॉलेज में इनवाइट करते हैं और उन्हें सम्मानित करने का मौका मिलता है। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर भावना मैम। थैंक यू मैम, एंड नाउ ओवर टू प्रीति वैली मैम। Thank you, ma'am. Now, ladies and gentlemen, as we now move towards the cultural segment of today's program, may I respectfully request our esteemed chief guests and other dignitaries to kindly take your seat in front of the row, enjoy the performance. And I request our organizing team to kindly help them to escort. And culture, vibrancy of this academic gathering, we now present a beautiful folk dance performance. Please welcome our student with a big round of applause. Audience, please give him a big round of applause for our student. मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे। गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघट बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत झूम झूम तथई ताता, झूम झूम चनना झूम झूम चनना, क्रांता 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 धा धा धा। मधुबन में
मधुबन में राधिका नाचे रे सनि द म प ग म स नि द सा ग म स नि द मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका Thank you guys for your wonderful and energetic performance. Let us appreciate the performance with a big round of applause. As we reflect upon As we reflect upon this enriching 3-day academic journey, it is important to understand the vision, structure and outcomes of the seminar. May I invite Dr. Sneha Swarup, Head of Department Geography, ma'am, to present a brief report and an overvision of 3-day seminar. Thank you so much, ma'am. It gives me immense pleasure and academic pride as co-chairperson to present this report. The 3-day multidisciplinary international seminar was successfully organized at SS College, Jahanabad from 19th to 21st of February 2026. The seminar was conceived in alignment with the vision of India's National Education Policy 2020, promoting holistic, flexible and multidisciplinary education and research ecosystems responsive to contemporary global challenges. The seminar commenced with the ceremonial lighting of the lamp, Saraswati Vandana, and welcome address by our principal sir. The conference logo and the online radio initiative, the Green Frequency, were unveiled, followed by the conference souvenir. The technical sessions across the 3 days featured extensive technical deliberations through keynote and plenary lectures organized under 8 thematic tracks: interactive sciences, emerging technologies, global health and sustainable development, advanced computational approaches, sustainability and energy transitions, societal impact and ethics, industry, academia collaborations, and education and future skills. While the day 1st, 2nd and 3rd focused on climate change, biodiversity, sustainable nanotechnology, artificial intelligence integrated work, environments, vocational education under National Education Policy 2020. Throughout the 3 days of this multidisciplinary seminar, there were 67 keynote lectures delivered, while in total plenary and research paper presentations were 58. This international multidisciplinary seminar successfully hosted over 135 academic contributors, including distinguished keynote speakers, plenary presenters, research scholars, and eminent dignitaries. The strong participation across 8 multidisciplinary tracks reflects the seminar's national and international outreach. While in the valedictory function included the presentation of Dr. Raghubans Singh Lifetime Achievement Award 2025 and 2026, followed by cultural performance, and will be announced by best oral presentation and best paper presentation across different tracks. The successful organization of this seminar demonstrates the growing importance of interdisciplinary dialogue in addressing contemporary global and regional challenges. It creates a vibrant academic platform for scholars, researchers, policymakers, industry professionals, and students.
The event marked a significant milestone in advancing locally grounded yet globally relevant research cultures in the Indian subcontinent, reaffirming Swami Sahjanand College Jahanabad as an emerging hub for multidisciplinary academic excellence. As we move forward, the spirit of beyond boundaries will continue to guide our academic endeavors towards building inclusive, sustainable and future-ready research ecosystem. Thank you so much. बहुत धन्यवाद सेहा मैम। और अब मैं बिना किसी देरी के झिझिया, एक बिहार की पारंपरिक गीत जिस पे लोक नृत्य होता है, यकीनन ये सभी को झुमा देगा। तो आमंत्रित है झिझिया नृत्य लेकर आज की लड़कियों का समूह। ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तकनीकी खराबी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन पूरी तरह से इन लोगों ने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। और अब मैं आगे के लिए सर को आमंत्रित कर रही हूँ। अच्छा, प्रीति रानी जी को। Now I would request our small kids for the next performance. Audience, please welcome these small kids with a big round of applause.
कैसे है ठीक है हाँ हाँ इन द प्रोसेस है करा देंगे एडमिशन होगा स्टेशन से लेंगे कृष्ण को मिल जाएगा कृष्ण को मिल जाएगा दिए भी सर है ना नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया हम ढूंढे अपनी जोगनिया को जोगी जी ढूंढ खिला दो जोगी जी वाह जोगी जी मिला दो हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी जोगी जी नींद ना
बरसे, हर रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा होली आई, होली आई, मस्ती आई, मस्ती आई, मस्ती आई, होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती आई, मस्ती आई, मस्ती आई। DJ Sudesh Garg. बहुत ही शांति और सभा में उपस्थित सभी से एक विशेष आग्रह कि आप लोग अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, किंतु हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वी.के. मंगलम सर को अति आवश्यक कार्य से जाना है, तो परंपरा को तोड़ते हुए हम सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के ही आशीर्वचनों के लिए उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं और बाकी सभी लोग अभी मौजूद रहें। सर को थोड़ा जल्दी है, तो सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर वी.के. मंगलम सर। सरिया जरा रिकॉर्डिंग करिए बेचारे। ये जो अभी आपने नृत्य देखा, बच्चों ध्यान से सुनो। वो पूरे कार्यक्रम का 3 दिन का निचोड़ था। कन्हई और राधा बीच में खड़े थे, गोपियां चारों ओर अपने तरह तरह की भंगिमाओं से, नृत्य से, गानों से कृष्ण को रिझा रहे थे। कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार। बहुत गौर से सुनिएगा, संकेत की भाषा में मैं बोल रहा हूं। जहानाबाद के एसएस कॉलेज के इस प्रांगण में कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार। एक ही विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पाया नहीं, जो कभी हाथ आया नहीं। एक ही गोपी में अगर वो सब कुछ मिल गया होता, तो कन्हई ने दूसरी गोपी को प्यार क्यों किया? मैं कवि हूं, सर्जक हूं, नया हूं, सत्य की तलाश में कहां नहीं गया हूं। मैं कवि हूं, सर्जक हूं, नया हूं, सत्य की तलाश में कहां नहीं गया हूं। कवि ने गीत लिखे बार बार, एक ही विषय को देता रहा विस्तार। ये दोनों मगही के शब्द हैं, सूतल और उठल। तो कौन सी ऐसी क्रांति हुई होगी भाषा की दुनिया में, जिसने सोए से भाषा को उठा दिया? सिर्फ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। ये जो ने है ना, ने, ये पूरे भक्ति काल में खास करके
13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं 18वीं शताब्दी तक इस ने का कहीं कोई नामो निशान नहीं। आप पूरी ब्रजभाषा को पढ़ लीजिए, पूरी अवधि को पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ी को पढ़ लीजिए, गढ़वाली को पढ़ लीजिए, कुमायूनी को पढ़ लीजिए, बघेली को पढ़ लीजिए, सब चीज को पढ़ लीजिए, ने कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खड़ी बोली आई, सिर्फ ने आया तो सूतल से भाषा उठल, क्रिया बदल गई। मैंने जाना है, मैंने खाया है। अब पहले हम खाई थी, बाबूजी गेल थी ने, पंडित जी गेल थी ने, मास्टर साहब गेल थी ने, बताइए तो इसमें ने है कहीं? मास्टर साहब ने नहीं खाया है। ने जब आया तो क्रिया बदल गई, सूतल से भाषा उठल। Is it not the transforming linguistic change? क्या ये बहुत बड़ा रूपांतरण नहीं हुआ? बहुत बड़ा रूपांतरण। सिर्फ एक छोटे से ने पूरी की पूरी भाषा की दुनिया में कायाकल्प कर दिया। हमको ये बताइए, ये कहना ये चाहता है ये सेमिनार का ये टॉपिक कि आप अगर किसी खास परिधि में रह करके अगर कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो अब वो काम चलने वाला नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। मैं 2 एग्जाम्पल से आपको इसको साबित करके बताता हूं। हम लोग बुद्ध की नगरी से वहां से चल करके, ये भी पूरा का पूरा मगध का इलाका है, इसी रास्ते से गुजर करके भगवान बुद्ध गया पहुंचे थे। जिस रात घर छोड़े, शुद्धोधन के दरबार में एक बड़ा भारी नृत्य हुआ था। उस नृत्य को त्रिषित नृत्य कहते हैं। त्रिषित शब्द तृष्णा से बना है, यानी कि सम्मोहन इच्छा को अभी भी इस नृत्य के माध्यम से गौतम को रोका जाए, क्योंकि गौतम ने ठान लिया था कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इस सांसारिक दुनिया में नहीं रहेंगे। शराब और शबाब और पूरे नृत्य का पूरा दौर चला। गौतम जागते रहे। कुछ देर के बाद वो तमाम नृत्यांगनाएं नाचते नाचते गिर गई। बुद्ध ने देखा कि जो अभी बहुत सुंदर लग रही थी, उसके चेहरे पर उसके जितने भी कॉस्मेटिक्स थे धुल करके कहीं काले, कहीं उजले, कहीं नीले, तो कहीं हरे सौंदर्य का वो पूरा का पूरा पैमाना बुद्ध ने देखा। अपने छंदक को बुलाया। छंदक उनके सारथी का नाम था कि कंथक को ले आओ। कंथक उनके घोड़े का नाम था। ले आया और कुछ दूर तक चलने के बाद उसको भी लौटा दिया और पैदल चल पड़े। वैशाली के आसपास में उद्रक रामपुत्र मिले, जो पहले उनके गुरु थे। जहानाबाद से गुजरते हुए ही वो गया गए हैं। यही अलार कलाम मिले थे, दूसरे गुरु। लेकिन बुद्ध ने उनका भी साथ छोड़ दिया और फिर लग गए तपस्या में। ये बुद्धिज्म खास करके 1 AD में जब आया, तो 1 AD में हिंदुस्तान में किसका शासन था? कुषाण वंश था। इसी 1 AD में बुद्धिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, महायान और हीनयान, ग्रेटर व्हील और शॉर्टर व्हील। महायान किसको कहते हैं? महायान उसको कहते हैं कि उसको मानने वाले लोगों ने कहा कि अगर समय के साथ अगर बुद्ध के उपदेशों में अगर परिवर्तन कुछ करना पड़े तो हम करेंगे। लेकिन हीनयानियों ने कहा कि नहीं, अगर बुद्ध के चरण भी जहां हैं तो वही हैं, उपदेश तो बाद में चेंज कीजिएगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं क्लोज थे, एक बाउंड्री में बंधे हुए थे। लेकिन जो महायानी थे वो बियॉन्ड बाउंड्रीज थे।
उस परिधि से बाहर निकलना चाहते थे। आज देखिए कि श्रीलंका हीन यानी होकर के श्रीलंका है और जापान महायानी होकर के जापान जापान है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो ऑर्थोडॉक्स थे, महायानी जो थे वो प्रोग्रेसिव थे। इसकी तुलना में एक दूसरे मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहा हूं, मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूं। सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, जर्मनी के थे। जीवन भर उन्होंने मार्क्स का विरोध किया। शायद आप लोग जानते होंगे उनका नाम, सोशियोलॉजी के जो प्रोफेसर होंगे वो जानते होंगे। वो जिंदगी भर मार्क्स का विरोध किया, मार्क्स के उलट लिखा। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट एथिक। दिस इज द फेमस बुक। अगर मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे विषयों की पढ़ाई, बहुत सारे विषयों का अध्ययन बहुत जरूरी है। एक विषय से अब काम नहीं चलने वाला है, न साइंटिफिक वर्ल्ड में, न नेचुरल वर्ल्ड में, न ह्यूमैनिटीज में और न ही सोशल साइंस में। बियॉन्ड वर्ल्ड, बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये सभी विषयों के लिए लागू है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द साइंस, it is also applicable to the social science, humanities, management, and AI also. My director is here sitting. क्या लिखा उन्होंने? कि the rise of capitalism and Protestant ethic, पूंजीवाद का विकास वही हुआ जहां प्रोटेस्टेंट इथिक थे, प्रोटेस्टेंट थे। अब मैं समझा देता हूं कि क्रिश्चियनिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। ईसाइयत जो है ना, ये दो भागों में बट गया। जैसे बुद्ध बट गए थे, बुद्धिज्म, उसी तरह से ईसाइयत भी दो भागों में बट गया। एक को कैथोलिक कहते हैं और दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। अगर किसी चर्च में जाना, बाहर गेट के अंदर ही एक औरत गोद में बच्चा लिए हुए ऐसे किए हुए है, तो तुरंत समझ चलाना कि ये कैथोलिक चर्च है, क्योंकि वो मदर मरियम को और यीशु को दोनों को मानते हैं। वो ऑर्थोडॉक्स हैं। मरियम अविवाहित थी और वर्जिन थी, यीशु को जन्म दी थी। आज हमारे समाज में कोई वर्जिन, कोई अविवाहित लड़की अगर वो बच्चे को जन्म दे दे, तो आज भी हम इतने प्रोग्रेसिव हैं कि उस औरत को और उस बच्चे को हम रख लें? नहीं। लेकिन उस सोसाइटी ने, मदर मरियम ने जब यीशु को जन्म दिया, शी वॉज वर्जिन, ऑर्थोडॉक्स थे, यीशु का जन्म हुआ और वही यीशु को सलीब पर टांग दिया गया। सच्चे लोग मित्रों हमेशा अल्पमत में होते हैं। सुकरात को जब जहर दिया गया तो वो भी अल्पमत में थे। ईसा मसीह को जब सलीब पर टांग दिया गया तो वो भी अल्पमत में थे। मंसूर को जब फांसी चढ़ा दिया गया तो वो भी अल्पमत में थे। और कबीर को जब काशी छोड़ना पड़ा तो वो भी सच हमेशा अल्पमत में होता है, बहुमत में नहीं होता है। लेकिन उसी तरह से अगर किसी दूसरे चर्च में गए जहां तुमको ये तस्वीर अगर देखने को नहीं मिली और उसकी गुंबद बिल्कुल लंबी लंबी, तब तुम समझ जाना कि ये प्रोटेस्टेंट चर्च है। प्रोटेस्टेंट वे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ईसा मसीह ने जो कहा है, अगर समय के साथ अगर हमको उनके विचारों में परिवर्तन लाना पड़े तो हम लाएंगे। लेकिन कैथलिक्स ने कहा कि जो ईसा ने कहा, जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है वो वही है। ईसा की बातों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और वो वहीं रह गए। आज पूंजीवादी देश वही हैं जो प्रोटेस्टेंट है, जो प्रोग्रेसिव है, जो बियॉन्ड बाउंड्रीज हैं। उनकी जिंदगी में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई कन्फाइनमेंट नहीं है।
कोई डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे पगहा तुड़ा करके वो कहीं भैंस के जैसा वो चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। दे आर वेरी मच कन्फाइंड टू द नॉर्म्स। अब जैसे कैथोलिक्स कहता है कि बैंक से लोन लेना अपराध है, आप ये बताइए कि कोई भी देश बिना बैंक से लोन लिए हुए चल सकता है क्या? बैंक के बाहर लिखा रहता है लोन लीजिए, लोन चुकाइए, अच्छे ग्राहक बनिए, फिर आइए। ये बैंक के बाहर लिखा रहता है। लेकिन हम लोग क्या है कि लोन ले लिए और सो गए। चुकाने पर हमारी कोई उसमें रुचि नहीं है। यही गलत है ना। आप कहते हैं कि हमारे देश में विदेशियों का इतना ज्यादा कर्ज है, लेकिन फिर भी IMF वर्ल्ड दे रहा है, IBRD दे रहा है आपको। अब कोई लड़का मान लीजिए फिजिक्स पढ़ता है, उसको CRR नहीं मालूम है, उसको रेपो रेट नहीं मालूम है, उसको सॉफ्ट लोन नहीं मालूम है, हार्ड लोन नहीं मालूम है, IBRD नहीं मालूम है, IMF नहीं मालूम है, तो क्या बताइए कि वो आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ सकता है क्या? तो मैंने दो विषयों को रखा कि एक किस तरह से हीनयानी रह गए, और भारत, आप पूछेंगे कि भारत में सर क्या है, हीनयान है कि महायान है? भारत हमेशा बीच का रास्ता लेकर चलता है और जरूरत पड़ने पर चीजों को छोड़ते हुए, जैसे सांप अपने केंचुन को उतार देता है, अपने निर्मोह को उतार देता है, ठीक भारत भी वैसा ही देश है। अगर जरूरत पड़ गई कि नहीं, इस बात को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, तो वो तुरंत उसको वहीं ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ जाता है। मिडिल क्लास, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, जो बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वीणा बजे ही। सो माय रिक्वेस्ट इज, ये जो बियॉन्ड बाउंड्रीज है, ये हर जीवन के कदम पर लागू हो सकता है, ये हर विषय पर लागू हो सकता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी विषय हो। आप पहले क्या था, लड़का फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, फिजिक्स ऑनर्स करते हुए उसको कहा जाता था या तो आप मैथ ले लीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री ले लीजिए। लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि फिजिक्स अगर आपका मेन विषय है तो साथ में साइकोलॉजी और हिस्ट्री भी रख सकते हैं। ये बियॉन्ड बाउंड्रीज है। अब आपको मनोविज्ञान का पता नहीं है और आप चाहते हैं कि हम रचनाकार बन जाए, कथाकार बन जाए, उपन्यासकार बन जाए। आप ये बताइए कि अंग्रेजी में जो कहता है किड्स हाइपेरियन में कि साइलेंस इज द मोर इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो प्रतिध्वनित करता है, अभिव्यंजित होता है, यानी मौन बहुत ज्यादा अभिव्यंजित होता है। कभी कभी बोलने से ज्यादा चुप रहने पर भी जैसे वो आदमी बहुत कुछ कह देता है। और हमारे यहाँ आगे कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। जैसे दुनिया में सच इतना ही है, हम इतना बोल रहे हैं, तो ये छोटा सा, ये तो झूठ ही बोल रहे हैं ना, तो चुप नहीं रह सकते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तुम व्याप्त नहीं सकते सारी दुनिया में, जितना तुम में व्यापा है उसी को निभाओ। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, बाउंड्री से बाहर चलो। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, Thank you, sir, for your great words. It really enlightened our thoughts. Now, I request S.K. Mishra, sir, please
enlighten us with his few words. Thank you, ma'am. Our chief guest of this 3 days international seminar, Professor Mangalam sir, Registrar Magadha University Bodhgaya, Arun sir, President, Science Society Patna, Anantastos Dwivedi ji, Director General Heritage Society Patna, Bihar. Special guest, Principal DAV KK Pandey Sahab. Earlierly people placed here, presently Director, Artificial Intelligence, Magadha University Bodhgaya, Dr. Madhav sir. Principal of this institutions, Deepak ji, very much akin to me because good potency they have always to deliberate the matters in very nice way. And all the organizing team members who organizes so nice 3-day international seminar before us that actually give the impetus force to each and every one. और जितने हमारे organizing team के अलावा the most important is the presenters and participators who presented to make it grand success. Obviously, अभी जो यहाँ पे cultural events भी हम लोगों ने देखा that give the good impetus of us to make it grand success. Obviously, sir, अभी हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने beyond boundaries की बात की है. Of course, many more multifaceted dimensions we have in our minds that will penetrate everything in moral knowledge. यहाँ पर जो वर्ड एजुकेशन का आता है, E stands for elegancy, D stands for discipline, U stands for utterly development, C stands for characterful, A stands for attiredness, T is trustworthy, I is identification of God, and is nice in nature. Of course, very nicely beyond boundaries facts are still being discussed through NEP 2020. और NEP 2020 के जो 5 important components हैं, 1 is equity, 2nd is access, 3rd is quality, 4th is affordability, and 5th is accessibility. Sir, so far as heart of NEP is concerned regarding the multiple and beyond boundaries, 3 words are very much important here. 1, educate, 2nd, encourage, and 3rd is enlighten. Of course, Deepak Praveen ji, many thanks to you and your all team members for organizing such kind of very nice 3 days international conferences here to make a very great path to each and every constituent of Magadha University Bodhgaya just to learn more from here. क्योंकि सर एकेडमिक साइज में 4 बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं. 1 इज सेमिनार, 2nd इज कॉन्फ्रेंस, 3rd इज वर्कशॉप, एंड 4th इज कांग्रेस. मैं अभी विनोद राय साहब से बात कर रहा था. हैविंग द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव इज 450 अराउंड. सर ये सेमिनार नहीं हुआ, ये आपका कॉन्फ्रेंस हो गया. बिकॉज जो एकेडमिक साइज होता है सेमिनार का, उसका 200 से 250 के आसपास का ही होता है. तो थैंक यू वेरी मच माय प्रिंसिपल्स दीपक जी एंड ऑल द एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स हु जस्ट जॉइंड हियर, एंड आई फील वेरी मच डिलाइटेड टू बी फिजिकली प्रेजेंट ऑलवेज हियर. मैं तो हमेशा कहता हूँ सर, वेन एवर वी स्टार्ट एंड टेक द थ्रस्ट इन आवर एजुकेशनल फील्ड्स टू कम फॉरवर्ड्स, जो कि NEP 2020 में हमेशा कहा गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरीज, बिकॉज एजुकेशन 3 कैटेगरी के होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. अगर इस तीनों प्रकार के एजुकेशन में पेनिट्रेशन किया जाए टू मेक इट मोर वाइडेंस, टू मेक इट मोर ब्रॉडनेस, टू मेक इट मोर इंक्लूसिव एंड टू मेक इट मोर होलिस्टिक,
these are the themes and heart of NEP 2020. Of course, whenever we people start anything to come on the fronts to make it success, मैं तो हमेशा कहता हूँ, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तकलीफ तो होती है, बट ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। Sir, of course, all esteemed faculty members here at SS College Jahanabad always give the good thrust to make it grand success, because I always take the feedback from Deepak ji, Vinod sir, Deepak ji always. बहुत अच्छी gentries यहाँ आई है sir, and thanks to Registrar Sahib and Honorable Vice Chancellor also, just to deputate the good gentry of faculty members here in SS College Jahanabad. In order to make it more holistic regarding the NEP 2020, always the term is beyond boundary, because Registrar Sahib ने जो 4-5 फेसेट को कवर किया है, बिकॉज मल्टी फेसेट डायमेंशनल फीचर्स लर्निंग प्रोग्राम इज एजुकेशन. एजुकेशन इज व्हाट? एजुकेशन इज लर्निंग, ट्रेनिंग, इंक्लूसिवली मेक द होलसम डेवलपमेंट. लर्निंग प्रोग्राम इज द एजुकेशन. हाउ टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, इट इज द थर्स्ट एरिया ऑफ आवर्स. इसलिए मैं हर हमेशा अपने सारे रिसर्चर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को कहते हैं कि बेहतर सी बेहतर की तलाश करो. मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो. डूब जाता है शीशा पत्थर की चोट से, डूब जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो. सर, many more inclusiveness still we have in our minds and hearts. In order to make the proper dynamisty between these two terms, to make it more inclusive, to make it more holistic, to make it more and more beyond boundaries. बियॉन्ड बाउंड्रीज जब तक नहीं आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट हमारे समक्ष, हमारे सामने जो आत्मा है इस NEP 2020 का, वो हमारे समक्ष नहीं आ सकता. वी मस्ट ऑलवेज हैव टू टेक ए सॉल्वेंट बो टू मेक एंड टू क्रॉस द बाउंड्री, टू मेक इट मोर पेनिट्रेशन, टू मेक इट मोर एंड मोर इंटर क्रॉसिंग टू ईच अदर, बिकॉज दैट मे बी मल्टी डिसिप्लिनरी, that may be cross-disciplinary and that may be interdisciplinary. ये तीनों टर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारी शिक्षा में. ये है multidisciplinary, some of the things are cross-disciplinary and some are interdisciplinary. अगर इस तीनों के जिस्ट के फैक्ट को मिलाया जाए तो निश्चित तौर पे जो holistic development, which one is a theme of NEP 20, that can easily be precipitated throughout. और मैं हर हमेशा कहता हूँ तो मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है. मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है. जिंदगी के हर पहलू में लमान होता है. गिरने वालों को कुछ नहीं मिलती और लड़ने वालों की जिंदगी में जहान होता है. हम लोगों को एक गुड रिसर्चर, बिकॉज हमारे सामने मॉडल बैठे हुए हैं इस ईयर के रघुवंश बाबू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के ट्रू डिजर्वर्स अरुण बाबू और हमारे द्विवेदी साहब. Thanks goes to Praveen ji and all the team members who just give the very nice citations, because whenever people just read out it, I have gone through the every words and the lines that being depicted thereon. Sir, बहुत बेहतरीन आपने डिस्पर्स किया है. That one give the good impetus to the other colleges also, that made them and procure the things from this munch also, and to make it grand success, not only the part of SS College, that may be the part of other institutions of Magadha University both here. Last but not the least, I again give the one impetus, because K.K. Mishra साहब टॉकन्स के MD यहाँ पे खड़े हैं. मैं सर बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको. In order to give such kind of motivational, innovative ideas in the college campus, how to make it grand success, how to start the things, how to penetrate the things, how to prolong the things, and how to enrich the things. Because these 5 C's are very much important. Commitment होना चाहिए, confidence होना चाहिए, cross sectional features होना चाहिए, और क्रॉस बाउंड्री इंटरपेनिट्रेशन होना चाहिए. अगर ये तमाम चीज़ आपके अंदर है, nobody can check the cross success in your life. As I hope and trust you all people just make it grand success. और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा विनोद राय साहब से और प्रवीण दीपक जी से. सर, what the outcomes are just precipitated by this 3-day international seminar, you must write up the proceeding of it and place the proceeding to our honorable registrar Magadha University Board Gaya, so that it should be precipitated not only the part of SS College, that may disperse to the other colleges also. और सर, इसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी, एन के अग्रवाल साहब को भी दिया जाए.
Government of India को भी, so that because it is most demanding, more emerging, more catching, more attracting, more enriching also. Thank you very much. आज मुबारक, कल मुबारक, जिंदगी का हर पल मुबारक, SS कॉलेज का पल मुबारक, मगध विश्वविद्यालय का हर सब मुबारक. Thank you very much. मैं माननीय अतिथिगण से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कृपया मंच पे आ जाएं और हमारे डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी सर को मीटिंग में जाना है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आने के लिए आपका धन्यवाद, आप प्रस्थान करें. आने को नींद आ रहा है. इस 3 दिवसीय बहुउद्देश्य सेमिनार में कुछ बेस्ट पेपर्स, बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशंस और कुछ टेक्निकल चेयरपर्सन और कीनोट स्पीकर्स ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है. तो मैं अभी उनका नाम कारण रही हूँ, कृपया वो मंच पर आए. मैं डॉक्टर शशिधर गुप्ता सर से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए, और मैं अपने गेस्ट से आग्रह करती हूँ कि उन्हें एज अ टेक्निकल चेयरपर्सन और एज अ कीनोट स्पीकर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए. सर दोनों उन्हीं का है सर, एज अ टेक्निकल चेयरपर्सन और एज अ कीनोट स्पीकर. मैं डॉक्टर नेहा कुमारी मैम से विनम्र आग्रह करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आए. डॉक्टर नेहा कुमारी मैम के लिए भी टेक्निकल को चेयरपर्सन और एज अ कीनोट स्पीकर का सर्टिफिकेट है. मैम ने किया ना कीनोट स्पीकर मैम आज नहीं ना किया, कल भी नहीं किया. कल 3 एब्सेंट. कल भी नहीं किया, कल भी नहीं किया. शरबत हो गई. Now for best poster presentation, Miss Subi Kumari, research scholar. Miss Subi Kumari, kindly come on the stage. नहीं आई है. I think she is not here. Next for paper presentation, Dr. Prateek Kumar Das. Okay. Track one. For track 2, best paper presentation, Dr. Sneha Swaroop. Dr. Sasindra Gupta. Next, track 2, best paper, Dr. Sneha Swaroop. Track 3, best paper, Sri Praveen Deepak. Track 4,
Sasidhar Gupta. Best paper track 4, Dr. Sasidhar Gupta. Track 5, Best paper, Dr. Sujoy Mukhopadhyay. Track 6, Best paper, Sri Neeraj Kumar. Track 7, Best paper, Ashutosh Kumar. Track 8, Best paper, Dr. Vinod Kumar Roy. रिकॉर्डिंग बहुत चालू है। मैं टोकन टीम के सभी मेंबर से आग्रह करती हूँ कि कृपया वो मंच के करीब आ जाएं। टोकन टीम के सभी मेंबर, सब के में सब सभी मेंबर्स सब बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर एन कुमार से आग्रह करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आएं। डॉक्टर निकेत कुमार, निशु कुमारी, प्रिया कुमारी एवं अमीषा सिंह। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत एवं इन्हें धन्यवाद किया जाए। इनके अथक प्रयास एवं इनके प्रयासों की वजह से आज हम सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट्स, मेडल सभी टाइम पे मिल पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद टोकन की इंटायर टीम के लिए और डॉक्टर के मिश्रा सर के लिए भी, जिनके कुशल नेतृत्व में इन्होंने इतना अच्छा वर्कशॉप और इतना अच्छा मल्टीडिसिप्लिनरी सेमिनार आयोजित करने में एसएस कॉलेज स्वामी सहजानंद कॉलेज का बहुत बहुत योगदान दिया है। धन्यवाद सर।
अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर विनोद कुमार राय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा करें। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, सभा में उपस्थित माननीय शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं, आज ये 3 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। समापन सत्र 19 फरवरी को हमारा उद्घाटन सत्र था। इस दरमियान हम सबों ने मिलजुल करके अपने कार्यों का संपादन किया। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सर्वप्रथम अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रसाद शाही सर को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सतत प्रेरणा रही है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अपरिहार्य कारणों से वे उद्घाटन सत्र के दिन नहीं आ पाए थे, परंतु उनकी अनुपस्थिति भी हमारे लिए प्रेरक है और सर्वप्रथम मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे लिए सदैव मार्गदर्शक बने रहें। मैं उद्घाटन सत्र में आए प्रोफेसर आरवी सिंह सर को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों और विद्वत्पूर्ण व्याख्यान से आह्लादित किया और हम तहे दिल से उनका स्वागत और सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज समापन सत्र के दिन हमारे माननीय कुल सचिव, जो कि अत्यंत ही व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हैं और हमारे निवेदन पर न केवल आए बल्कि कार्यक्रम के शुरू से अंत तक मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनको आज मुख्य अतिथि के रूप में बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में डीन एजुकेशन प्रोफेसर एस.के. मिश्र सर का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वे भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हैं। वे भी मंच पर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अरुण कुमार सर को, जो उनका योगदान है उनको शब्दों में बयान करना कठिन है, जैसा कि उनके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वे निरंतर अपने कार्यों से शिक्षा जगत को आलोकित कर रहे हैं और साइंस के खास करके प्रचार प्रसार के लिए साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में वे कार्यरत हैं और उनको आज हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे करके उनको सम्मानित करने के बजाय हमको लगता है कि हम लोग सम्मानित हुए हैं, क्योंकि सर का जो कार्य है वो अत्यंत ही अतुलनीय है। मैं उनको आने के लिए और यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर उपस्थित डीएवी स्कूल के प्राचार्य महोदय श्री के पांडे सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है अवश्य ही हमारे निवेदन को स्वीकारते हैं और यहाँ पर आते हैं। आज भी उनकी उपस्थिति बनी रही, जिसके लिए उनको धन्यवाद। हमारे परम मित्र और मेरे साथ काम किए हुए डॉक्टर माधव कुमार सिंह, जो यहीं पर पहले फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष थे और अब वे यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, वहाँ पे वो डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आज वो आए और उपस्थित रहे, इसके लिए हम उनके ऋणी हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं अपने प्राचार्य महोदय को विशेष धन्यवाद देता हूं
जो निरंतर हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अभी कार्यक्रम ख़त्म ही नहीं हुआ कि अगले का बीजारोपण उन्होंने कर दिया है कि अब ये करना है, जो कि हम लोगों के दिमाग में बातें आ गई हैं और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अगले कार्यक्रम के साथ आप लोगों के सामने से उपस्थित होंगे। मैं एनवी स्कूल के संस्थापक डायरेक्टर मैडम को सपना मैडम को, मैडम मैं हम लोग आपको मैडम ही बोलते हैं, नाम भूल जा रहा हूँ, एक विशेष धन्यवाद जो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ ला करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम से चार चांद लगा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी कृतज्ञता जिनकी प्रस्तुति बहुत ही ज़बरदस्त रही। मंच में धैर्य के साथ आप लोग बैठे रहे, आजकल धैर्य की कमी हो गई है लेकिन लोग बैठे रहे, उन श्रोतागणों को विशेष धन्यवाद। अपने सहयोगी सहकर्मियों जो शिक्षक बंधु हैं उन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, जिसको जो कार्यभार दिया गया सबने निष्पादित किया, उन सबों को भी धन्यवाद। मेरे गैर शैक्षणिक कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मी, आप लोगों का भी सहयोग बना रहा है। आप लोग जबरदस्त सहयोग किए, अन्यथा यह कार्य शायद करने में हम लोगों को बाधा आती। आप सबको धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद जो निरंतर इस पूरे कार्यक्रम को 3 दिनों से अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं और यहाँ मौजूद रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संगीत के लिए मुन्ना जी की टीम और उनकी टीम ने प्रस्तुति भी किया। झिझिया का जो कार्यक्रम था मुन्ना जी की टीम ने प्रस्तुति दी और संगीत का जो कार्य किया मुन्ना जी ने, ये उन्हीं की टीम के द्वारा किया गया, उनको भी विशेष धन्यवाद। अंत में आप सबको धन्यवाद। और कार्यक्रम के समाप्ति के पूर्व मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी परंपरा है कि राष्ट्रगान से कार्यक्रम को समाप्त करें, उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कृपया आप खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए टीम को मैं आमंत्रित करता हूं और साथ में पहले वंदे मातरम, तत्पश्चात राष्ट्रगान। बोलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। कोटि कोटि कंठे कन कन निनाद कराने, कोटि कोटि भुजग धृत खर कर वाले, अबला के नमायित बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वन्दे मातरम। तुनि विद्या तुनि धर्मा, तुनि हृदय तुनि मर्मा, तुम ही प्राणा शरीर, बहुते तुनि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति, तुमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां, सुजलां, सुफलां
वन्दे मातरम्। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम।